Hello children, how are you? Now we are going to discuss the first chapter of your class 10, the real number. Real number. All the numbers are real numbers. Before discussing about the real number, we have to revise the numbers you have studied in the previous class. For example, even number. Even number, odd number, prime number. You know the even number? Even number are those numbers which are divided by 2. Which are divided by 2. For example, 2, 4, 6, 8, 10, 12 and so on. These numbers are divided by 2. And the number which are not divided by 2, for example 1, 3, 5, 7, 9, 11 dot dot dot. इनके बीच में जो नंबर आए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, तो ये जो नंबर है ये 2 से डिवाइड नहीं होते, so we can say these are called odd numbers. The next one, prime number, जो किसी से डिवाइड नहीं होते, केवल खुद से, these are divided by itself. For example 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 2 से डिवाइड होता है, किसी से डिवाइड नहीं होता. 3 भी 3 से डिवाइड होता है, 5 से होता है, 7 से होता है, 11 से होता है, 13 17, ये सब खुद से ही डिवाइड होते हैं और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते. So we can say these are called the prime numbers. Now after that we have to study about the real number. Real number, all the numbers are called real numbers. Positive, negative, integers. Integers होते हैं ना, integers. Integers positive and negative. Positive integers and negative integers. Positive integers means 1, 2, 3, so dot dot. -1, -2, -3, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और नेगेटिव इंटीजर्स हैं. इसके अंदर 0 आ गया, तो these are called integers. The next one is rational number. Rational numbers. Rational number means rational number. It is denoted in the form of P upon Q. Is for example 2 upon 5, 6 upon 7, 3 upon 7, 4 upon 9. These all are rational number. Upper number is called numerator and lower number is called denominator. For example, in 2 upon 5, 2 is the numerator and 5 is the denominator. 6 is the numerator and 7 is the denominator. Numerator, denominator, numerator, denominator. So all the rational numbers, integers, whole number, even number and odd numbers, all are called the real numbers. Okay. Now in this chapter we have to study the first of all Euclid division lemma. Euclid's division Euclid divisions lemma. In Euclid divisions lemma, for example, a trader has eggs in his basket. Now he want to divide equal groups. For example, suppose if he has 147 eggs in basket. Now he want to divide into equal groups. Equal pairs बनाता है ना, जैसे कि for example he counted in pairs. If counted in pairs, pairs का मतलब क्या हो गया, दो दो एग रखता है, तो लास्ट में कितने एग बचते हैं,
1 egg will remain. 1 egg will remain. Remain माने बचता है. दो किसने ग्रुप बनाए? दो ऐसे करके दो ग्रुप बनाता है क्या? तो लास्ट में कितने एग बचते हैं? एक बचते हैं. तो ये इक्वली डिवाइड नहीं हुआ. अब यहाँ पे 3 का पेयर बना था. इफ यू काउंटेड इन 3, तो यहाँ पे कितने एग बचते हैं? 2 एग बचते हैं. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे करके रख रहा है. तो लास्ट में 2 एग बचे. तो ये भी इक्वली डिवाइड नहीं हुआ. अब ये बनाता है 4 के पेयर में. 4 के पेयर में बनाता है तो कितने एग बचते हैं? 3 एग बचते हैं. जब 4 के पेयर में बचाएगा तो 3 एग बचेंगे. अब चाहता है कि वो 5 के पेयर बनाए. तो 5 के पेयर में लास्ट में कितने बचेंगे? 4 बचेंगे. तो वो भी 4 बच गए तो उसका पेयर नहीं बना. अब ये 6 का पेयर बनाता है तो बचते हैं 5. 6 का पेयर बनाने में बचे 5. और लास्ट में बनाता है 7 के पेयर में 0, माने कुछ भी नहीं बचता. तो इसका मतलब कि 7 के पेयर बचाए. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. तो 7 के जो पेयर बना रहा है 7 7 7, इस तरीके से 7 के जब पेयर बनाएगा तो लास्ट में एक भी एग नहीं बचेगा. इसका मतलब है तो पेयर ऑफ 7 इज द बेस्ट पेयर in which he divides all the eggs in equal number. And now, if we divide 147 by 7, अब हम 147 को 7 से डिवाइड करते हैं. 7 2 जा 14, 7 1 जा 7. कुछ एग नहीं बचा, रिमाइंडर 0 हो गया. तो इसका मतलब है कि वो 21 पेयर्स बनाएगा. 21 पेयर्स बनाएगा और हर एक में 7 एग होंगे. ओके, मीन्स 21 इंटू 7 इज इक्वल टू 147. तो ये एक इक्वल डिवीजन लीमा है. इसके हिसाब से ही कैन डिवाइड इट इंटू इक्वल नंबर्स. ठीक है. नाउ आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज, तो इसको हम किस तरीके से शो कर सकते हैं? जैसे कि माना टोटल नंबर थे एग के, हम उसको 147, तो उसको हम ए से शो करेंगे. इसको हमने कितने कितने के ग्रुप बनाए? वो बी ग्रुप हो गए. और बी के ग्रुप बनाए, कितने बार उसको मल्टीप्लाई किया, उसको क्यू से किया और बचा रिमाइंडर क्या? तो ये इसका इक्वेशन है. A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. टोटल कितने कितने के ग्रुप बनाए, किससे मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या बचा? रिमाइंडर. मीन्स अब जैसे कि उसने जब माना पहले 6 के पेयर जब बनाए थे, तो यहाँ पे A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. तो A, अब उसने क्या किया, यहाँ पे जब 6 के पेयर बनाए, टोटल थे 147. तो उसने 6 के पेयर बनाए थे, 6 के बनाए थे. तो हमें इसको हम ले लेते हैं क्यू. बी 6 क्यू प्लस 5 बच रहे थे. जब उसने 5 के पेयर बनाए, तो जब उसने 5 के पेयर बनाए तो A इज इक्वल टू 5 W प्लस 4. माने A जब 6 के पेयर बनाए तो 5 बचे. 6 के जो पेयर बनाए तो 5 बचे. जब 5 के पेयर बनाए तो 4 बचे. 4 के पेयर जब बनाएगा 4 इंटू डब्ल्यू की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं, S प्लस 3 बचेंगे. जब हम 3 के पेयर बनाते हैं 3 इंटू टी प्लस 2 बचते हैं. जब 2 का पेयर बनाते हैं 2u प्लस 1. ठीक है ना. ऐसे किया था हमने अभी कि 6 के पेयर बनाए तो 5 बच रहे थे लास्ट में. 5 के पेयर बनाए तो 4 बचे थे. 4 के पेयर बनाए तो 3 बचे थे. जब 3 के पेयर बनाए तो 2 बचे थे. और 2 के पेयर बनाए तो 1 बचे थे. और जब 7 का पेयर बनाया था तो कुछ भी नहीं बचा था. ये था ना, 7 का पेयर बनाने में क्या था, A इज इक्वल टू 7
क्यूब प्लस 0। तो ये इट इज द बेस्ट सिलेक्शन फॉर ग्रुपिंग द एक्स। नाउ अब हम एक एग्जाम्पल लेके करते हैं, जैसे कि कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोई भी एग्जाम्पल ले लिया, जैसे कि 17/6 है। तो 17 को हम क्या करेंगे, 6 2 जा 12, 12 में क्या जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे। तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, फॉर्मूला तो वही चलेगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, a b q प्लस आर, 5 रिमाइंडर है, माने 2 पेयर बनाए 6 के, तो 5 बच रहे हैं, तो यहाँ रिमाइंडर हुआ 5। ठीक है, ऐसे करके हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे ले लो 5 12, 5 and 12। तो 5 यहाँ पे पहला नंबर छोटा है, तो 5 को हमको 5 तो रखना लाना ही है, तो क्या करेंगे 12 इंटू 0 कर देंगे प्लस 5, माने 0 प्लस 5। 5 के पेयर मतलब 5 ही रहेगा, उसमें फिर वो रिमाइंडर है क्योंकि इसमें ग्रुपिंग नहीं हो रहा, क्योंकि पहला नंबर इसमें छोटा है। ठीक है, फार्मूला हमको वही चलाना है। अब है a logarithm and a logarithm and a logarithm। ये क्या चीज है, एक सीरीज एक प्रकार की, जिसको कि हम डिवाइड का एक प्रोसीजर है कि फॉर सॉल्विंग टाइप ऑफ कोई भी प्रॉब्लम है, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक लॉगरिथम बनाया गया है। और ये जो ए लॉगरिथम है, एक 9th सेंचुरी में एक मैथमेटिशियन थे, उनके नाम पे रखा गया था के एच ख्वारिज़मी, इनके नाम पर रखा गया था। और लीमा क्या चीज है, लीमा जो एक प्रकार का एक स्टेटमेंट होता है, जो कि किसी भी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। कोई भी स्टेटमेंट है, इसको प्रूव करना है, तो इसके लिए हम लीमा का यूज करते हैं। ओके, नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द HCF। फॉर एग्जाम्पल, हमको जैसे कि कोई भी लेना है, HCF आपने पढ़ा होगा, 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा HCF। HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है, तो वो है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, 455 एंड 42, माने 455 एंड 42, इसका हमको HCF फाइंड करना है। तो इसके लिए हमको क्या करेंगे, 455 को हमें 42 से करना है, तो 42 को हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि इसके आसपास आ जाए। तो 42 को अगर हम 10 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 420 हो जाएगा। 420 को इसमें से माइनस करेंगे तो कितने से करेंगे, तो 35 आ जाएगा। इसका मतलब हो गया 420 प्लस 35, माने तब ऐसा ग्रुप है A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ओके, अब है 42 को हम 35 से 35 हो जाए 35 में हमने कितना जोड़े, 7 जोड़े हैं, तो 42 के बराबर हो जाएगा। 35 प्लस 7 मिलकर के होता है 42। अब हमको 35 से करना है, 35 को 7 5 जो 35, तो हो गया 0, मतलब 35 प्लस 0, तो हमारा लास्ट नंबर जो 7 आया, दैट इज द HCF ऑफ द गिवन नंबर 7। तो 455 और 42 का जो HCF हो गया वो हो गया 7। ओके, नाउ वी हैव टू सॉल्व द फर्स्ट एक्सरसाइज। ये समझ आ गया ना। अब हम फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं हम लोग। फर्स्ट एक्सरसाइज में HCF ही है। HCF
का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। ओके, एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट क्या है, नंबर है 135 एंड 225। 135 एंड 225। तो क्या करना है, 135 से 225 को डिवाइड करना है। फॉर्मूला वही चलेगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसी से ही लेके चलना है हमको, है ना। तो 225, तो 225 है, हमको 135 से डिवाइड करना है। अगर 135 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 270 हो जाता है, वो ज्यादा रहता है। तो 2, अब हमको 225 लाना है। तो 225 में से 135 को माइनस करेंगे, 90 आया। इसका मतलब है कि 135 इंटू 1 प्लस 90। ओके, ये हो जाएगा 135 प्लस 90। अब हमको 135 को 90 से करना है। 90 1 जा 90, 90 में हम क्या जोड़ें, 45 जोड़ दें, तो ये हो जाएगा 135 के बराबर। ओके, अब किसको करना है, 90 को करना है। 90 को 45 2 जा 90, 90 आ गया, हमको 90 लाना है। तो 90 प्लस 0, तो रिमाइंडर क्या हो गया, 0। जब 0 रिमाइंडर रहता है तो लास्ट डिवीजर क्या है, 45 आया। तो 45 जो हो गया वो हो गया एचसीएफ। ठीक है ना। तो 135 एंड 225 का एचसीएफ हो गया 45। 45 इज द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब सेकंड क्वेश्चन हम लोग करेंगे 196 एंड 38220। ओके, वन 96 एंड 38220 बहुत बड़ा नंबर है ना। तो 38220 को 196 से करना है, बहुत बड़ा नंबर है, तो हमको इसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। 196 को 38220 में किया, पहले तो 1 बार ही जाएगा। 196 ठीक है, पहले 1 बार गया, अब कितने बार जाएगा, 9 बार। ठीक है, अब 5 बढ़ जाएगा, 1 कितना आ गया, 195। पूरा गया 195 से, एक स्टेप में ही क्लियर हो गया। तो हम क्या करेंगे इसमें, 195 से किया तो नीचे रिमाइंडर आ गया 0। तो मतलब 38220 प्लस 0, एक स्टेप में ही क्लियर हो गया। देखने में बड़ा था लेकिन एक ही बार में क्लियर हो गया। तो लास्ट नंबर हमारा क्या आया, 196। देयरफॉर एचसीएफ इज इक्वल टू 196। ओके, नोट डाउन। Now, after that, the third question, 867 and 255. 867 and 255। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 255 है, देखिए फिर 867 इज इक्वल टू 255। 255 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आसपास आ जाए, 2 बार 3 बार, 3 बार एक बार ट्राई कर लेते हैं।
765, थ्री बार ठीक रहेगा ना। 765, इसको 867 से घटाएंगे, 102 आ गया। ठीक है, 102 माइनस करने पे आया, तो अब हमको 255 को 102 से करना है। 102 2 जा 204, 204 इसमें से घटाएंगे कितना आएगा 51, माने 102 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 204 आया। अब 204 में हमने 51 ऐड किया तो 225 आ गया, 255 आ गया ना। अब हम 102 लेंगे, 102 को 51 से करना है तो सीधा सीधा 51 2 जा 102 होता है, 0 ऐड करेंगे तो इसका मतलब आ गया क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, देखो यहाँ पे तो क्या आ रहा था पहले 765 प्लस 102 आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था 204 प्लस 51, यहाँ पे आ गया 102 प्लस 0, इसका मतलब सही आ रहा था। तो यहाँ पे लास्ट नंबर हुआ 51, तो 51 जो हो गया वो हो गया HCF, HCF इज इक्वल टू 51। ओके, ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, टू फाइंड द HCF ऑफ द गिवन टू नंबर्स। अब हम लोग क्या करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस देते हैं, उसमें से एक दो क्वेश्चन मैं कर दूंगा, बाकी क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। ओके, अब जैसे कि होमवर्क में करना है, पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं, सॉरी जैसे कि एग्जाम्पल कोई भी एक ले लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि है 24 and 4, 24 और 4 बहुत सिंपल सा है, इसमें कुछ करना नहीं है। अब 24 इज इक्वल टू 4 इंटू 6, 4 6 24, पूरा पूरा हो गया, इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ा हमको, तो 24 प्लस 0 हो गया। तो एक बार में चला गया, तो इसमें 4 जो है HCF इज इक्वल टू 4। ठीक है ना, सिंपल सा एकदम। ठीक है, अब थोड़ा सा एक बड़ा नंबर ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं माना 4052 एंड सपोज 420। वो छोटा सा था, ये बड़ा नंबर है, इसको हम लोग देखते हैं। 4052 को हमको 420 से करना है। देखो 9 4 जा 36, 9 बार ट्राई करके देख लो, 9 से ट्राई करके देखो, 420 को 9 से जा रहा है, इंटू 9 किया तो 3780 आया, और 4052 में से 3780 को माइनस किया 272 आया। ठीक है, माने 3780 आया यहाँ पे, जब दोनों को मल्टीप्लाई कर 3780 क्या आया 3780 प्लस 272। अब हमको 420 को करना है 272 से। अगर 272 का डबल करें तो 5 से 100 से ऊपर निकल जाएगा, तो इसलिए इसको हम 1 से ही करेंगे। अब 420 में से 272 माइनस किया 148 आया, प्लस 148 क्या आया 148। कहने का मतलब ये हुआ कि 272 प्लस 148। अब 272 को करना है
148 इंटू 1 ही करेंगे क्योंकि यहाँ पे फिर ज्यादा हो जाएगा। 148 माइनस किया, 12 में 4 में 4 का 2, 124 आ गया, माने 148 प्लस 124। ठीक है, अब 148 को करना है, 148 को करना है तो 124 इंटू 1 प्लस 24 हो गया। 124 में 24 ऐड करेंगे तो आ जाएगा ना 24, माने 124 प्लस 24। अब ऊपर करते हैं हम लोग उसको, क्या करना है 124, तो 24 को किससे मल्टीप्लाई करें, 10 से कर देना सीधा सीधा, 10 से करेंगे ज्यादा हो जाएगा, 5 से करें, 10 5 से करेंगे, 5 से करेंगे कितना हो जाएगा 120 आया प्लस 4, माने 120 प्लस 4। ओके, अब 24 को करना है 4 से, 4 इंटू 6, 4 6 24 प्लस 0 आ गया, तो यहाँ पे लास्ट नंबर क्या आया 4 आया। Therefore HCF इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहां पर HCF हो गया हमारा 4। ओके, एनी प्रॉब्लम नहीं ना? Note down in your notebook. Now we are giving 5 questions for homework. Okay. होमवर्क दे रहे हैं हम, फाइंड HCF। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, वन 4। सेकेंड क्वेश्चन 148 and 124। थर्ड क्वेश्चन 272 and 148। फोर्थ 420 and 272। क्वेश्चन नंबर 5 12576 and 4052। इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है बस वही थोड़ा बड़ा नंबर का है, बाकी सब छोटे छोटे हैं, हो जाएगा। ओके, नोट डाउन एंड सॉल्व इट। Now you have to send the solved questions at my WhatsApp number. Okay, thank you.